ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلی گجرات سے۔ جیسے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس پرفتن دور میں بہت سارے فتنے اٹھتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے، اور ہمارے کچھ اپنے بھی ہیں اس طریقے سے فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سنیوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ کون ہے کیا ہے نہیں معلوم، اب وہ اپنے آپ کو تو سنی کہہ رہا ہے لیکن ہم نے اس کی تصویر تو نہیں دیکھی، اب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو ہم اس کو مانیں گے یہ سنی ہی ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو مان لو۔ اور ابھی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں، میں اس کا مزید تبصرہ کروں گا انشاءاللہ اور کچھ حوالے بھی رکھوں گا، تو پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر انشاءاللہ میں آگے تبصرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والا بول۔ میں بچپن سے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں۔ ہاں بریلی والے بول، بریلی والے ہاں، اور یہاں پہ رہیں گا تو مچھی رکھنے کا، اور نماز سکھا جائیں کون سی مسجد میں کرکالم میں جاتا ہوں۔ ہاں، اور پیسے نیچے نہیں پینچے تو اپنا ایسے ہی رہے، اوپر کر کے نماز نہیں پڑھے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت پہ کلام پہ چلیں۔ مزاروں پر بھی جائیں گے، مزارات پہ بھی جائیں گے، اللہ کے ولی کو بھی مانیں گے بول۔ اللہ کو بلی کو تو مرتے دم تک مانتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا لے کہ ان کے وسیلے سے مانگو، ان کے سلیس سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے نہ مانگو۔ دیکھو دیتا ابھی نے تو یہاں کھڑے کھڑے ابھی بول معافی مانگ، ویڈیو معافی میں بول۔ مانگتا ہوں۔ میں پہلے سے ہی سننی ہوں۔ جن کے نام کا کھڑے، ایسا بول، جن کے نام سے دنیا میں میں یہ ایڈ اس لیے کیا کہ کاریگر لوگ کو سناتا ہوں کہ اتنا غلط بات اور ہے۔ ناسک میں یہ بھی بول، ناسک میں جو دیو بندے ہیں اس کو ماریں گے، اور بول سلے گلی کو بھی ماریں سلے گے، گلی کو ماریں گے، ناسک میں جو بھی آئیں گے یہاں پہ بول۔ جو ناسک میں آئے گا میں اس کو ماروں گا۔ کس کو مارے گا؟ سیف کلی کو۔ 24 سلے کلی، سیف کلی، صحیح کلی نہیں سلے کلی، سلے کلی، 24 دیوبندی، ہاں، اور طارق جمیل کو بھی ماروں گا بولنا، بول رہے انشاءاللہ طارق جمیل کو بھی ماروں گا۔ دیکھا نا بھائی، لوگوں کو بول رہا ہے، بولے لوگ مجھے پہ بولنے لگے کہ کھوکا بیٹا ہمارا بڑھوا بول، اس کو بڑھوا، طارق جمیل کو بڑھوا بول، یہی بول رہا تھا، بول ادھر، طارق جمیل کو بڑھوا بول، طارق جمیل بھڑوا، ذاکر نائک بھی بڑھوا بول، جی جیسے کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں ایک دیوبندی تبلیغی جماعت کا ایک دیوبندی ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک دیوبندی ہے، اور وہ ایک دیکھنے میں بالکل ایک سادہ عام طالب علم لگ رہا ہے، کوئی حافظ مولوی یا قاری یا مفتی عالم کوئی نہیں ہے، یہ عام لگ رہا ہے جیسے کہ لوگ تبلیغی جماعت والے بیوقوف بناتے ہیں، یہ اس طریقے سے ایسا پڑا ہوا لگ رہا ہے، لیکن اصل مدعا یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے اس میں 5-6 لڑکوں کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنا کو سنی بریلوی کہہ رہے ہیں اور اسے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ تم زور دو اعلیٰ حضرت کو ماننے کا، کہ تم مزار پہ جاؤ، اور اس میں کئی طرح کی اس نے بات کی جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے۔ ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں، اس بات کو کہ اس طریقے سے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی کسی کو، کیونکہ قرآن بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، پورے ملک کی آیت ختم ہونے کے بعد فوراً شروع ہو جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم کو ان بد مذہبوں کا رد علمی طریقے سے کرنا ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، ہمارے علماء ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، ان کے پہلے کو علماء دیکھ لیجیے، تمام لوگ بد مذہب کا رد علمی طریقے سے رد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علمی طریقے سے ہی کتابوں کے ذریعے سے رد کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ جو 4-5 جن کی آواز سنائی دے رہی ہے، اب ان کا مسئلہ کیا ہے ہم تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو سننے کہہ بھی رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو ہم رد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کسی کو پریشان نہ کیا جائے، اور اس طریقے سے کسی کو نہ کیا جائے، اس طریقے کی ویڈیو بنا کر کے، اور لوگ جو بندی بہت سارے اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، دیکھیے کسی جو بندی کو پریشان کر رہے ہیں، اس طریقے سے نعرہ لگا رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے انڈیا کے اندر میں کچھ غیر مسلموں کو عزت پسند لوگ ہیں جو اس طریقے سے کچھ نعرے لگواتے ہیں، زبردستی ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان کو موب لنچنگ کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے دیوبندی جو ہے کہنے لگے ہیں کہ یہ بریلوی اس طریقے کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ہم علمی طریقے سے رد کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک حوالے لگاؤں گا آگے، میرے پاس تو بہت حوالے ہیں، انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ حالانکہ یہ گنڈا گردی کرنا یہ دیوبندیوں کی عادت ہے، ہم نے دیکھا ہے
हाँ, अगर कोई बरेलवी कर रहा है तो उसका अपना जाती अमल है, लेकिन फिर भी हम इसको रद्द कर रहे हैं। ये गलत किया उसने। जो भी है, भले ही वो देवबंदी है, लेकिन वो एक इंसान है। हम जब भी इसका रद्द करेंगे, इनमें तरीके से रद्द करेंगे। अब वो गुमराह है क्या है, उसको तो अकाई जानने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस तरीके से जिसने परेशान किया वो सही नहीं कर रहा है उसका। हम बिल्कुल इसका बाइकआउट करते हैं, जो अपने आप को बरेलवी कह रहा है और इस तरीके से किसी को परेशान कर रहा है, चाहे वो देवबंदी ही क्यों ना हो। हम इसका रद्द करेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी एक हवाला रख रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं हवाला दिखा रहा हूँ किस तरीके से देवबंदी किताबों में गुस्ताखी और तादाद भरे पड़े हैं। अपने ही फतवे से लोग काफिर हो जा रहे हैं और उसके बाद में किताबों में गुस्ताखी भरी पड़ी है। ये किताबें दिखाएं, वीडियो देखें, हमारे उलमा की वीडियो देखें और बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड कर रखे यूट्यूब में। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो अपलोड करते हैं रोज़ाना, उनको देखें। हम उसको स्क्रीन पर हवाला डालते हैं और हवाला बताते हैं, तो हवाला देखें, उस हवाले को स्क्रीनशॉट निकाल लें और किताबें डाउनलोड करें। नहीं मिलते तो नंबर हमारा दिया होता है, उस पर रब्ता करें, रब्ता करके हवाला लें। और अपने मदरसे या मस्जिद के इलाके में देवबंदी मिल जाते हैं आपको, तो इस तरीके से ना परेशान करें, उनको किताब वगैरह दिखाएं। आप हो सके तो खरीद लें ऑनलाइन, और दुकान वगैरह हो आपके उधर तो खरीद लें शॉप पर से जा करके। तो उनको किताबें दिखा करके वो सवाल करें जो किताबें मौजूद है। इस तरीके से किसी को परेशान करना सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से किसी को परेशान करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हम इनको बिल्कुल कंडम करते हैं इस बात को, ठीक है। इस तरीके से वो किसी को परेशान कर रहे हैं। और ये नासिक का बोल रहा है कि नासिक में कोई आएगा और सारी ज़मीन को ये बोलो वो बोलो। हालांकि भड़वा का मतलब क्या होता है वो आमतौर से वो सभी लोग जानते हैं। भड़वा का मतलब क्या होता है, भड़वा का एक माना ये होता है कि बीवी को कमाई खाने वाला। भड़वा का एक माना होता है बीवी को कमाई खाने वाला। हालांकि सारी जगह किस तरीके से यह आला रज़ा की तालीम बिल्कुल नहीं है जिस तरीके से ये जबान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लुखा समझते हैं ना, वो चक्का लुखा होते हैं, उस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल आला अदर की तालीम बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके की ये तालीम का लोगों को दिखा रहे हैं कि मदार पे जाना चाहिए, पैसे हासिल करना चाहिए, बिल्कुल ये लोग इल्म से यतीम है। सिर्फ ये शिद्दत पसंद लोग हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर बरेलवी है भी तो मुझे तो लगता है कोई नशा वशा करके रखे होंगे, जहाँ तक मेरा गुमान है। इस तरीके से ये जहालत की बातें कर रहे थे। इसको बोल रहे थे नासिक में आएगा तो मारेगा, क्या जोर जबरदस्ती से दिन नहीं चलता है जनाब। इस तरीके से लोग और भी गुमराह होते जाएंगे। ये सुन्नी बरेलवी मारते पीटते हैं, गुमराह करते हैं, हालांकि ये बद मजहब का काम होता है। कभी भी किसी की बद मजहब की जमात में जाइए आप और उसे निकलने की कोशिश करिएगा तो वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। चाहे आप कादियानी होकर देख लीजिए या देवबंदी या अहले हदीस होकर देखिए, और फिर आपको वापस आने की कोशिश करिएगा तो आपको इतना तंग कर देंगे, इतना कर देंगे कि आप सुसाइड कर लेंगे। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी है और उसके बाद वीडियो भी देखी है, और मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी भी मैंने पढ़ी है, वाक़े मैंने देखे हुए हैं, खबरें देखी है, मैंने बहुत कुछ देखे हुए हैं। ये सारे जो है बद मजहबों के काम होते हैं, हमारे काम नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे। अगर मेरी वीडियो अगर आप जितने लोग हैं किसी एक तक भी पहुँच रही है तो हम आपका रद्द कर रहे हैं। इस तरीके का आप बिल्कुल ना करें, सुन्नियत को बदनाम ना करें। एक तो वैसे ही हमारी सुन्नियत तो लोग आम लोग हमारी आवाम बदनाम कर रही है। रोज़ा नमाज को छोड़ करके ताजिया लेके निकल जाते हैं और उसके बाद में नारे ऐसे अजीब अजीब लगाते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, शादी वगैरह भी डीजे बजाते हैं। छोटी छोटी चीज़ को लेकर के देवबंदी लोग हम पर एतराज़ करते रहते हैं। ये क्या कम है कि आप लोग ये लेकर बैठ गए? ये क्या कम है कि आप लोग ये लेकर बैठ गए? इस तरीके से हम चलिए अब हमारी बात आ गई वीडियो दिखाने की, तो वीडियो में इंशाल्लाह मैं वीडियो कह रहा हूँ, वो एक उनके किताबों का एक मैं हवाला पेश करता हूँ और उसके बाद में मैं कुरान की आयत बताता हूँ कि इस तरीके से आप दिखाएं और उनसे पूछिए। इस तरीके से आप दिखाइए कि आप इस किताब में कुछ और है, कुरान और हदीस कुछ और कह रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। इस तरीके से आप उनसे सवाल करें और अपना एतराज़ रखें। और अगर आपको वीडियो बनाने का शौक है तो इस तरीके का वीडियो बनाएं और उसके सामने वीडियो कैमरा चालू करके वीडियो बनाएं और उससे पूछें कि भाई कुरान में तो ये नहीं है, हदीस तो बिल्कुल बरक्स है, हदीस तो बिल्कुल इसका अपोजिट में, कुरान तो बिल्कुल इसका अपोजिट में बयान कर रहा है, आपकी किताब कोई और कह रही है, आप इसका जवाब दीजिए। तो बिल्कुल लाजवाब होगा। इस तरीके से मारने पीटने से कुछ भी नहीं होगा, किसी को तंग करने से सही नहीं। चलिए मैं वो हवाला इंशाल्लाह मैं पेश करता हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये मेरे पास किताब है
तकफ़ीतुल ईमान एक बदनाम ज़माना किताब, बहुत ही बदनाम किताब है ये। और ये वो किताब है जिसको अंग्रेज़ों ने छपाया, अंग्रेजी में तर्जुमा करके इसको अंग्रेज़ों ने दुनिया भर में छपाया और छपा करके बंटवाया। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तौहीद की किताब सिखाने वाली, ये तौहीद की दर्स देने वाली किताब ये अंग्रेज की छपा रहा है, बंटवा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे पास हवाले मौजूद है, मैं उधर नहीं जा रहा, क्योंकि उधर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक तादाद दिखा रहा हूँ तकफ़ीतुल ईमान किताब से। हालांकि इस किताब में तो बहुत सारे एतराज़ मौजूद है, इसमें बहुत सारे एतराज़ मौजूद है। मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है, मैंने सब देखा है, और कितने एतराज़ मैं रखूँगा तो कोई देवबंदी जवाब नहीं दे पाएगा। हालांकि एक हवाला मैं रख रहा हूँ और देवबंदियों से मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर जवाब देना है तो गाली गलौज नहीं, आप इल्मी तरीके से जवाब दें, जैसे कि मैंने एतराज़ किया हुआ है कुरान की आयत सामने रख करके। चलिए तो मैं पेश कर देता हूँ। ये मेरे पास किताब है तकफ़ीतुल ईमान, 2 इबारतें मैं तकफ़ीतुल ईमान की पढ़ूँगा और एक कुरान की आयत मैं पढ़ के सुनाऊँगा, और इसके बरक्स कुरान की आयत निकलेगी। अब उनसे पूछें कि मैं कुरान की आयत मानूँ या किताब मानूँ। आप सुने और गौर करें, देखें और उन दो बंदे सवाल करें। पहला हवाला सफ़ा नंबर 41 यानी कि 41, और इस तरीके से पढ़ के सुनाए और जो बंदे सवाल करें। पहला लिखा है सफ़ा नंबर 41 पर तकफ़ीतुल ईमान किताब, लिखने वाले इस्माइल देलवी। लिखा है कि और यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। ठीक है, अब उसको ये इबारत पढ़ के सुनाए। आपके इलाके में कोई देवबंदी मुफ्ती आलिम हो तो उसकी इबारत पढ़ के सुनाए कि और यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। अब हमको देखना है कि ये बड़ी मखलूक से मुराद इस्माइल देलवी ने लिया किसको है, बड़ी मखलूक से मुराद किसको लिया है, वो मैं आगे दूसरी इबारत पढ़ के सुना देता, बात क्लियर हो जाए कि बड़े मखलूक से मुराद इस्माइल देलवी ने किसको लिया हुआ है। ठीक है, फिर मैं आगे कुरान की आयत भी मैं पेश कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद में आप देख लीजिए सफ़ा नंबर 131, वही किताब तकफ़ीतुल ईमान लिखने वाले इस्माइल देहलवी। ठीक है, लिखा है कि यानी सब इंसान आपस में भाई भाई है, और जो बड़ा बुजुर्ग होता है बड़ा भाई होता है, तो इसके बड़े भाई की ताज़ीम कीजिए, और मालिक सबका अल्लाह ही है। इसको इस हदीस से मालूम हुआ कि औलिया, अम्बिया, इमाम, दादा और पीर, शहीद यानी अल्लाह के जितने मुकर्रब बंदे हैं सब इंसानी है, और बंदे आजिज़ है, और बंदे आजिज़ है और हमारे भाई है, मगर उनको अल्लाह ने बढ़ाई दी है। क्या है, बंदे आजिज़ है और वो हमारे भाई है, और वो हमारे भाई, अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी है, वो हमारे बड़े भाई ही हुए। आप फिर से गौर कर लें, यानी हर इंसान मखलूक या हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की शान के आगे जमात की भी दलील है। और बड़ी मखलूक में किसको लिया इस्माइल देलवी ने, किसको ऐड किया है, किससे मुराद लिया है, बड़ी मखलूक से मुराद अम्बिया अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह। मैं इबारत अगर आप मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, दोनों इबारत है, उसके बाद में मैं आगे कुरान की आयत पेश कर देता हूँ। चलिए रहने दीजिए, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप दोबारा से पढ़ लें, मेरे से हवाला ले लें, मेरे पास ओरिजिनल किताब से मौजूद है। अब रही बात, मैं एक बार वो इबारत पढ़ के सुनाता हूँ इस्माइल देलवी, फिर मैं कुरान पेश करता हूँ। लिखा है कि और यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। क्या चमार की तो कोई हैसियत है, लेकिन बड़ी मखलूक से मुराद जो है उनकी तो चमार से भी दलील हैसियत नहीं है। चलिए ठीक है, अब बड़ी मखलूक से मुराद जो जिसने लिया है, एक कुरान की मैं आगे आयत पेश करता हूँ, उसके बाद मैं हवाला पेश करता हूँ, तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस्माइल देलवी असल में था कौन। ये मेरे पास कुरान मौजूद है, उसके बाद में ये सूरे कुरान की सूरे मुनाफिकीन है, और उसके बाद आयत नंबर 7 और 8 है। लिखा है कुरान में कि वलिल्लाहि इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिकों का इसका इल्म नहीं। वही मुनाफिक इस्माइल देलवी जिसने कहा कि और यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा है छोटा अल्लाह की शान के आगे जमाती भी दलील है। हालांकि बड़े मखलूक से मुराद जिसने अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिया, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुनाफिकों को इसका इल्म नहीं, यानी कि इस्माइल देलवी को इसका इल्म नहीं। कुरान बिल्कुल वाज़ेह फतवा दे रहा है कि ये मुनाफिक ही है जिसको इल्म नहीं। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि इस्माइल देलवी बिल्कुल पक्का मुनाफिक था। कुरान से बिल्कुल साबित है, कुरान की नस से बिल्कुल साबित है कि इस्माइल देलवी पक्का मुनाफिक था। कुरान के आयत इस तरीके से आप सवाल करें, किसी मुसलमान किसी देवबंदी वहाबी को इस तरीके से तंग ना करें, इल्मी बात करें, किताब की तादाद दिखाए, कुरान की आयत या हदीस शरीफ
पेश करें, और नहीं दिखा सकते तो आप हमसे हवाले ले, हम देंगे उनके हवाले तादाद वगैरह के सब, ठीक है। तो आप दुआ में याद रखिएगा, इस तरीके की बिल्कुल वीडियोस वगैरह ना बनाएं, किसी को शेयर ना करें, ठीक है। इससे सिर्फ हमारी बदनामी हुई और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे 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 आइंदा से ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।